Today we are not talking about parenting tips. We are talking about what children are really trying to tell us through their behavior. And according to me, child psychology helps us understand a child from inside, which is your mind and emotion, and outside behavior and relationship. So today we have a very special guest with us, Mr. Devesh Avasti, and he has an experience of 23 years in the market. एंड मार्केटिंग की टीम में होने के बाद भी MBA करने के बाद भी ही हैज़ स्विच्ड हिज फील्ड टू दिस लाइक एजुकेशन which will be I'm very curious about to know more about it. So let's explore. So welcome Mr. Devesh Avasti at Deepti and Shravan Talks, and today we will be talking आपकी जो एक child psychology को लेकर एक समझ है and parent counseling session. तो आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट कि आपका एकदम मार्केटिंग से बिल्कुल हटके एंड देन यू केम इनटू दिस फील्ड. सो आई जस्ट रियली वांटेड टू know about it ki how this journey happened. Well, it was planned kind of. Yeah. When I did my MBA, even prior to that, I knew that one fine day I'll be switching into academics. Because that was the calling. And then for 10 years, maybe slightly shy of 10 years, I worked over there, and then I switched to academics. Okay. And then eventually, as you grow up the ladder, now I'm holding a position of principal in one of the ICSE board school in Kanpur. Yes. And yeah, certainly for this particular profile, you need to have that calling. You need to have that genuine affinity towards kids. आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू सर, बिकॉज जब आप अंदर से एक टीचर हो या जब आपको एजुकेशन के फील्ड में जाना है तो उसके लिए ना एक अंदर से जेन्यून फीलिंग होनी चाहिए. एंड देयर इज़ नो, आई डोंट थिंक सो किसी डिग्री की या किसी वैसी चीज़ों की, प्रोफेशनल डिग्रीज आई ट्रूली रिस्पेक्ट, बट एक जो नैक होता है ना, यू हैव दैट नैक ओवर देयर, वो फॉलो करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. Then this is very interesting area of child psychology. Yes. Because every day you get to see some new experiments happening. Very and true. every day you get to see some new learning. Provided you are open for the learning, then every child is a teacher moving around. Yes, absolutely correct. So that's the interesting part of it. And then certainly the team management and all those things are there, which certainly I bring my earlier experience into the place. And gradually we are doing well, and hopefully all the students are also doing well. Parents are happy about it, the way things are shaping up. So that's about it. ओके, सो मे आई नो आपने अपनी स्कूलिंग सर कहाँ से करी है? I've done my schooling from Sainik School, Lucknow. So nowadays it has been rechristened at it is called Captain Manoj Pandey, UP Sainik School, Lucknow. Okay. Captain Manoj Pandey was passed out from my school only, and then he got Paramveer Chakra in the Kargil War. Wow. So that's about it. ओके. एंड जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं सर, सो व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू यू चाइल्ड साइकोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग उसे समझना नहीं चाहते हैं. ओके. और इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट. रीज़न बीइंग द चाइल्ड डज नथिंग बट imitate the parent. Okay. I truly agree. Part to accept. No, he is not imitating. He must have learned it somewhere, maybe school, maybe friends. I don't know what kind of friends he's moving around with. No, it's not like that at all. It is always the child will imitate the closest person till maybe about 5 years, 6 years, 7 years. These are the parents. But most of the parents try to shrug off the responsibility from their shoulders. No, it is not us. He must have learned it from somewhere else. Then it comes to the child, the student and the friend circle that he's having in his school. That also plays a role. Teacher plays a very important role. Normally we have this concept of mother teacher. This is for the sake of saying, but otherwise they consider her mother only. I think you're talking about the preschoolers. The preschoolers. Yes. Yeah. Once okay, I'll break it down in age wise. Say 1 to 5 years. As a parent, probably I need to be a caretaker. True. Mama need to change the
nappies and everything, take care of the child. Exactly whatever is required, whatever people expect from a caretaker, this is what parents are doing. सब कुछ करना है आपको, उसकी पूरी केयर करनी है. By 5 years, he would be having some idea about things around. Now you switch to the role of cop. अभी आपको उसको गाइडलाइन देनी है, अभी आपको उसको बाउंड्रीज समझानी है कि दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड टच, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू शुड गो, एंड मे बी दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड अवॉइड. You know, we tell these are the hot objects, don't touch. The electric socket is there, please don't put your finger into it, and all these things. So you are moving around like a cop. हर चीज़ आप उसको बता रहे हैं, do's and don'ts आप establish कर रहे हैं. True. Then moves the next thing, which is probably the difficult part. When the child is getting into teens, not the teen, but Pre-teens. pre-teens we will Yes, call it. Yes. 11 to 15 years, pre-teens plus teen, early teens. This is where we need to be coach. Now, coach has got all the rights. Coach can guide you. Coach will certainly scold you. Obviously. And I will not move it further. Because many parents will take a liberty. Nowadays, what they do, they say teachers to teachers, please beat him if you feel like. No, it's not like that. It is your duty. Yes. The scenario, yes, the tables are turned. The tables are turned. We are not supposed to do this. So in that age bracket of 11 to 15, we really need to be very careful what we are telling him or her. What to do, what not to do. And at times it happens that the player is not really very satisfied with the coach. And that's where most of the friction comes in general life. Yes. I meet, if not on a regular basis, then maybe thrice in a week, parents are sitting and they are about to cry that child is not obeying them. Yes. Child is not even listening to them. Obeys. Further, yes, yes. They are not even obeying. They are not listening to them. Now this is not mistake of child. He has been conditioned like this. He has seen when he was talking to you, when he was approaching to you. Probably you were busy enough, or maybe you were doom scrolling. You didn't respond to him. True. Now this is coming back. And this is coming back to you. It has to come back to each and every parent. Parent कितनी जल्दी समझ पाता है ये parent की अपनी. As a easy way escape would be blame it on everybody, social media and the society all around and the teachers and school. No, my child is my prime responsibility. मेरा बच्चा क्या कर रहा है इसकी आंसबिलिटी मेरी ही होगी, मुझे ही इस पे काम करना होगा. तो सर इस पे ऐसा नहीं लगता कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के बजाय हमें पेरेंट साइकोलॉजिस्ट. They are more required in the society. Yes. Nobody talks about that. Yes. But they are more required, and I'll say an ego comes in between. मैं पेरेंट हूँ, मैंने दुनिया देखी है, एक नहीं टिंडे जैसा है, ऐसा नहीं. This is where it is your also testing ground. Please do not say कि बच्चा हमारी नहीं सुन रहा, आपने भी उसकी नहीं सुनी थी at times. सही बात. और ऐसा बहुत बार होता है. It is very frequent. Even if parents are waiting in the lobby, I can see it on the CCTV that they are doing the doom scrolling and they are not even listening to their own child. And then it happens everywhere. Any public transport, wherever you see, parents are busy in their own. अब आपने उसको अटेंशन तो दी नहीं थी, जब देनी थी. अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बात सुने. तो अर्लियर कोच वॉज नॉट showing or exhibiting the right behavior. Now coach is expecting that the player or this particular person, my child, will display the right behavior. No, the child has no exposure to it. The child actually doesn't know कि सही behavior है क्या. पापा बात कर रहे हैं तो मुझे फ़ोन रख देना है और मुझे पापा से बात करनी है, या क्योंकि उसको कभी ये सिखाया ही नहीं गया है. उसके साथ उससे तो हाँ में जवाब दिया गया और अब हम कहते हैं हमारी सुन नहीं रहा है. उसने देखा ही नहीं कि वंस द मील इज़ फिनिश पापा ने प्लेट उठाई और किचन में रखी या क्या. और अब हम कह रहे हैं बेटा ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कभी खुद नहीं. उसने देखा नहीं है. जैसे एक दिस इज़ अबाउट द कोच थिंग. 15 to 20 or maybe 18, 19, if you're lucky, then your child will speak to you. So your role is counselor. Counselor doesn't walk around and publicize about himself or herself, please I'm a counselor, talk to me. No, the counselor, if they feel like, if they are confident, comfortable enough, they'll come to you कि पापा ऐसा हो गया, मम्मी ऐसा हो गया. And if there is any parent whose kids are behaving like this, आ रहे हैं और मम्मी पापा से पूछ रहे हैं कि मम्मी ऐसा हो गया, पापा ऐसा हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, यू आर वन ऑफ द सक्सेसफुल पेरेंट. बच्चा कर लेगा.
if your child is coming to you for advice, you are one of the most successful parent. Now this is one thing again कि लाइक जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं एंड वेरी वेल सेड कि अगर बच्चा एडवाइस के लिए आ रहा है तो दैट इज़ वन ब्यूटीफुल थिंग. सर जैसे मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ या फिर और सोशल मीडिया पे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग. आई मीन दिस कैन बी एन ऑकवर्ड क्वेश्चन. I don't know how you take it on, but I was just reading अभी कल का ही एक इंसिडेंट था. A 6-year minor was raped by 10 or 13-year-old boy and they were like एक मतलब एक 6 साल का बच्ची. एंड क्या साइकोलॉजी होती होगी. आई मीन आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड वेयर वो बच्चे को उठाकर हेल्प कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं. सो लाइक वेयर द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू यू इज़ गोइंग जब हम बच्चों की बात करते हैं एंड व्हेन वी सी इतने छोटे बच्चे जब ऐसी चीज़ें करते हैं. बिकॉज इन बच्चों को जुवेनाइल में भी सेंड करना वहाँ पे भी इट्स नो यूज़. सो वेयर द पेरेंट्स हैव गॉन रॉन्ग इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन. Yeah, that's a very valid point and very good question. And just to start my answer, I've been to juvenile places also, Okay. just to understand what it goes and the kind of response that those kids give you. It actually tears your heart. जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में कोई कुछ बहुत अच्छा हुआ, then they gave some example. ये क्या मिस करते हैं बाहर के बारे में. उन्होंने बताया कि mothers cooked food and all those things. Okay. And then I was supposed to give some motivational lecture, so I was talking about around things ये वो. क्या लगता है आपको? The moment that child said that, I'm missing my mother's cooked food, I could see, although he was standing far off, but I could see the teary eyes कि अब तो यहाँ पे फंसे हुए हैं. And it makes no point कि पूछे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. Yeah. And they are already repenting about it. But that's a very, very later stage. पहले क्या हो रहा है? There is a famous quote and it was said by Buddha, we become what we think. True. Nowadays nobody thinks. Everybody is on the mobile phone. It's not that I'm against mobile phones, against the social media, but we become what we see. And there is absolutely zero control on the kind of content Which is any going. kid is consuming. There is zero control. As a parent, if I say or if I expect government will intervene, they will do some censorship, no, it is not going to happen. I think they banned TikTok. बहुत अर्ली स्टेजेस पे दे बैन टिकटॉक. बट टिकटॉक के बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने into TikTok. द बैन होने के तुरंत बाद में इंस्टाग्राम स्टार्टेड विद अ रील. उस पे भी सेम चीज़ें ही चल रही हैं. It came up with shorts. Everybody is nothing but another version of TikTok. टिकटॉक. यस. तो डू यू थिंक ये साइकोलॉजी जो वहाँ से उठकर आती है, जो ये कंटेंट कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं जस्ट टू एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ अ थिंग, दैट इज द मेन It is one of the culprit? main things. Okay. And what the parents, as a parent, I should do, or as a parent, we should do is to research a little bit about it. Steve Jobs, he never gave mobile phone to his own kids. Same goes They are with yes. tired of it. yes. And then there is probably, it's called Social Dilemma or some documentaries there on Netflix. It is kind of an interview of ex-Google, ex-Facebook, and then they are telling you why they have designed it in such a manner. The only thing that matters is the stickiness of any social media platform. The child will get kind of multiple reels, different kind of reels. Something will attract him or her and something will not, and then they will keep on scrolling. And the kind of content they are consuming, they are not thinking. They are just observing it. तो ये तो पेरेंट्स को ही मॉनिटर करना पड़ेगा सर. दिस हैज़ टू बी मॉनिटर्ड. Monitor. एंड आई थिंक जितने भी आई मीन देयर वाज वन मोर नेटफ्लिक्स पे देयर इज़ अ movie which was very hyped. I think it was released in 2024 or 25. Adolescence is the name of that movie. उसमें जो मुझे समझ में आया, my take was it कि the child जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुली हो रहा था and that is the reason he killed.
I think you might have watched. I have heard of it. I haven't अच्छा, seen okay, okay. So again, bullying हो गया, then constant scrolling हो गया, which I'm talking about. Are we missing communication? क्या हम miss कर Big रहे time, हैं? big time. We are missing communication. Like, it's a very frequent example, and you might be able to see it in nearby family and friends. People will say, बड़ा वाला जो बच्चा है हमारा ठीक है, लेकिन छोटा वाला बहुत स्मार्ट है. हाँ, this is there in every single family. The Yes. key to this is, जो बड़ा वाला था उसने आपको ऑब्जर्व किया, True. और जो छोटा वाला था उसने अपने भाई को ऑब्जर्व किया. The one who was closer to him or her in the age bracket. Yes. And because of your elder child, the younger one has got a better learning curve. That's it. अगर बड़े वाले का लर्निंग कर्व सही नहीं है तो ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं उसे उतना एक्सपोजर नहीं दे पाया और छोटा वाला बच्चा उसको कॉपी करेगा. द मोमेंट आई से दिस कि बड़ा वाला और छोटा वाला, दीज टू चाइल्ड्स, आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ रिफ्ट बिटवीन देम. हम I समझ know. नहीं रहे होते हैं. I know. छोटा वाला अलग कॉन्फिडेंस में होता है, But मैं स्मार्ट हूँ, और बड़ा वाला अलग ही डल हो जाता है कि मुझे तो हमेशा इस तरीके से कह दिया जाता है. सो बुलिंग स्टार्ट्स एट होम. आप क्यों ऐसे कंपेयर कर रहे हैं? दीज आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. I think, sir, we need to, in school, we need to start parent counseling. That's badly required. Yes, in every Absolutely. single school, because मेरी समझ से हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के पेरेंट अलग होते हैं, हर बच्चे की घर की इन्वायरमेंट अलग होती है. तो one-on-one सेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. आई डू थिंक जैसा आप बता रहे हो मेरे को, आई कैन टेक अ कंक्लूजन फ्रॉम दोज थिंग्स कि सबके प्रॉब्लम्स अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, सबके इमोशंस भगवान ने सब में वही 9 तरीके के ही डाले हैं, बट उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, और अगर आपको हेल्प नीड होती है, गो टॉक. राइट. इसमें मैंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे स्कूल में. सम ऑफ काउंसलर हैं to will invite parents. So the child counseling is going on, that is okay, but even the parent counseling. But the irony is parents don't turn up. आई डू रियली अंडरस्टैंड बिकॉज जैसे ही हम पेरेंट्स बनते हैं, आई थिंक हमें ना एक इंस्टेंट सा वो आ जाता है, अब तो हम पेरेंट्स बन गए, अब तो हम पेरेंट्स बन गए, हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और जो हम करेंगे हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा करेंगे. हाँ, हमसे अच्छा कौन करेगा? और उनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है. ट्रू. तो एंड दैट्स वेयर इट इज़ द आयरनी कि वो पता ही नहीं चला कि गैप कहाँ है. हाँ, हम कंफ्यूज्ड हैं. पता ही नहीं चल रहा गैप है. जैसे एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बच्चे को डराते हैं, सुई डॉक्टर को दिखा देंगे, सुई लगवा देंगे. डॉक्टर इज़ हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, फॉर अ बेटर पर्पस. उसका डर मत बनाइए बच्चे में. सही बात है. द अदर डे आई सॉ वीडियो अबाउट इट, सम अ डॉक्टर वाज सेइंग अबाउट इट, व्हिच मेक्स सेंस. वो हमेशा डॉक्टर से डरता रहेगा, सिर्फ आपने उसको ये बता दिया वो सुई लगा देंगे अभी तुम्हारे. और जबकि आप वहाँ पहुँचे किसी क्रिटिकल सिचुएशन में ही, आप ऐसे नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे. This is the doctor who is going to help. The child should know who is going to help me, who is there for the right direction of my life. मुझे डॉक्टर से बात करनी है तो कैसे करनी है. वो बच्चे को एक्सपोजर ही, हम अपने शॉर्टकट के चक्कर में बच्चे को अच्छा एक्सपोजर नहीं दे रहे होते हैं. एंड पेरेंटिंग इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. I can completely understand. And it's not that, yesterday I did something good with the child, today I am good. No, it requires a different challenge every day. And then there is another, what I would say, helicopter parenting, कि नहीं, हम तुम्हें इतना ना एक कंफर्ट जोन में रखेंगे कि हम तुम्हें एक्सपोज ही नहीं करेंगे. हाँ हाँ. इट्स दैट डिफिकल्ट. आप कहते हो बच्चे को, इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, आप बच्चे को सुबह स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, यू आर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट इफ़ यू आर ऑन बाइक, यू आर नॉट पुटिंग ऑन सीट बेल्ट इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वो कभी नहीं. उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी. मेरे पेरेंट्स, पापा तो यूज़ नहीं करता, इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हो गया. आपको लगता है अरे ये हमारी बात नहीं सुन रहा, उसने सब सुना है, उसने ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्जर्व किया, उसने ज़रूरत से ज़्यादा देखा है आपको. और आप फॉर गॉड सेक आप बच्चे को काउंटर नहीं कर सकते. नहीं, ये चुप है, छोटा है तो चुप है, वो नहीं कहेगा, हो सकता है, और ऐसा है भी नहीं. जनजी तड़ाक से आपसे कह भी देगी, नहीं आपने भी वो किया था. तो उस कन्फ्यूजन से, उस बबल से पेरेंट को भी बाहर आना होगा कि नहीं, हम तो कर रहे हैं, ये हम कितना इस पे खर्चा कर रहे हैं, हम इसकी फ़ीस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके सारे शौक़ पूरे कर रहे हैं. नहीं,
ही रिक्वायर समथिंग डिफरेंट. आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा और वही सबसे कॉस्टली चीज़ है. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा सर, टाइम अगर हम स्पेंड करने की बात करते हैं, अगर पेरेंट्स वर्किंग हैं आज की डेट में, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, कि एक अच्छी लाइफ अफोर्ड कर पाए, ऐसे में जो बच्चा है, इफ़ इट्स अ सिंगल चाइल्ड, Right. तो इसमें पेरेंट अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता है? 15-20 मिनट्स इन अ डे बस उतना ही रिक्वायर्ड होता है. इतना ही रिक्वायर्ड है. एक बार बच्चे को लगा आई एम बीइंग हर्ड, मम्मी या पापा से किसी से भी मेरी बात हो रही है, तो यू आर होम. अब वो आपके पास आएगा, मुझे परेशानी होगी तो मैं मम्मी पापा से बता सकता हूँ. आपको उसे वो कंफर्ट जोन भी देनी होगी. टॉक टू अस अबाउट इट. कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, talk to us about it. Once he is having that confidence, you will be the first person that he will come to. ओके. But if that comfort zone is not there, आपने उससे बात ही नहीं की, जब भी वो आया बैठा बात करने के लिए, हमने होमवर्क हो गया, ये हो गया, वो, विच इज़ ऑब्वियस, यू विल आस्क एज अ पेरेंट. बिल्कुल उन चीज़ों को बैकड्रॉप में रख देंगे, नहीं नहीं बैठो बात करते हैं. आपको सब चीज़ों में बैलेंस रखना होगा. एंड इफ़ यू आर रियली ऑब्जर्वेंट इनफ, तो बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है ये इसको सही लगता है और ये नहीं ये लगता. नहीं सही लगता है. एंड देयर कैन नॉट बी एनी पेरेंट ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ हु कैन से नहीं मुझे नहीं पता चलता. ऐसा नहीं, आपसे पता तो सब चलता है, सबको पता आपसे चलता ज़्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं जानता है. होता क्या है, ग्रेजुअली वी लूज द टच. वर्किंग पेरेंट है 15 में, अरे यू आर अबाउट टू हिट द बेड, यू कैन स्पीक टू हिम. खाना तो कोई कम से कम ठीक है, अगर पूरे टाइम नहीं हो पा रहा तो कोई एक ईदर ऑफ द पेरेंट एक बार तो बच्चे के साथ बैठ जाएं. आप खाना ना खाएं, हो सकता है आपको अभी भूख नहीं लगी है, यू आर वर्किंग लेट, मे बी यू हैव सम नाइट ऑफिशियल कॉल एट 11 इन द नाइट, आप ओवरसीज क्लाइंट हैं, तो आप बच्चे के साथ बैठ तो जाएं थोड़ी देर. और ये पॉसिबल बिल्कुल. आई मीन 24 आवर्स में 15 से 20 मिनट, ये इट इज़ पॉसिबल. एट द एंड ऑफ डे आप कर किस ले रहे हैं, उसी के लिए तो कर रहे हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा तो हस्बैंड वाइफ उनके, आप इसी के लिए तो कर रहे हैं. यही तो दीज आर 3 पिलर्स ऑफ दिस ऑफ योर लाइफ. ऑफ योर लाइफ. और अगर आप इसी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो चैलेंज हो जाएगा फिर. देन इट इज़ अ क्वेश्चन अबाउट प्रायोरिटीज़. मेरी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी अगर क्लियर होगी, और मुझे लगता नहीं कि पेरेंट की प्रायोरिटी बच्चे से ऊपर कुछ और हो रही होगी. बिल्कुल भी नहीं. होता क्या है ना सर, कई बार मेरे को ऐसा लगता है पेरेंट्स आर लाइक, वो ना अपने आप को सिर्फ प्रोवाइडर बना देते हैं, राइट. है ना, सिर्फ प्रोवाइडर बना देते हैं कि तुम्हारा ये शौक था, हमने ये पूरा किया, मेरा काम वहाँ पे खत्म, राइट. है ना. तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है. एंड बच्चा आई थिंक जब हमें नहीं समझ में आ रहा, बीइंग लाइक 35 ईयर्स ओल्ड या 40 ईयर्स ओल्ड, जब हम नहीं समझ पा रहे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 10 साल के बच्चे से, 11 साल के बच्चे से, 6 साल के बच्चे से कि वो हमें समझे. वो तो सिर्फ कॉपी ही करेंगे. Exactly. राइट. Like nowadays we are doing some experiment. This is a Singapore based company. We have done some tie up with them. Oh no, that's They really show that good. We can bring the child back to the books, story books. बिकॉज आई थिंक सोशल बॉन्डिंग के लिए जब आप जाओगे तभी वो सोशल बॉन्ड हो सकता है. आप नहीं तो यूट्यूब इज लाइक, काफ़ी बच्चे लाइक व्हेन आई कम टू दिस, बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग करवाते हैं आज की डेट में. देयर आर लॉट हु आर गोइंग फॉर होम स्कूलिंग बिकॉज आई थिंक उनकी साइकोलॉजी अब ये हो गई है कि इन बोर्ड्स में सिर्फ रटाया जाएगा और लिखवाया जाएगा, और बस ऐसे ही जैसे हम निकले वैसे ही. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE, Right. ICSE, बिकॉज 2 नए बोर्ड्स आए हैं, लाइक यू हैव IB बोर्ड and you have this Cambridge, and one more is coming into the picture, which is your Western Australian board. I think उसके लिए भी हाँ हो चुका है. तो दो स्कूल में, आई थिंक बैंगलोर हैज़ इट एंड एक और कहीं जगह पे, इफ़ आई एम मिसिंग इट. तो जब ये बोर्ड्स की हम बात करते हैं, आई थिंक सर वी आर टॉकिंग डायरेक्टली द चाइल्ड साइकोलॉजी एंड द चेंज एंड द शिफ्ट इन द चाइल्ड साइकोलॉजी. तभी इतने सारे बोर्ड भी बने. अदरवाइज इतने सारे बोर्ड्स की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू मी. एजुकेशन पॉलिसी या नहीं ज़रूरत है. बट आई थिंक ये जो चेंज ऑफ माइंड है, ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वहाँ से इन सब का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वहाँ से शुरू हुआ है. डू यू अग्री विद दिस थिंग? I agree with this, and I also partly agree with this. अच्छा, Because ओके. boards are actually putting up a lot of efforts. They- CBSE and Yes, ICSE? CBSE and ICSE, they are trying to inculcate so many new things, AI, robotics, and everything they are bringing into it.
एंड आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. कोई भी पेरेंट अगर ये देखना चाहता है कि पढ़ाई में क्या डिफरेंस आया है, तो आपके बच्चे की जिस स्टैंडर्ड की बुक है आप उसे उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा. हाँ, उस स्टैंडर्ड में आपने वो पढ़ाई नहीं की थी जो आज कराई जा रही है. बिल्कुल भी नहीं. बुक्स की क्वालिटी वो नहीं थी जो आपको पढ़ाई गई थी. दोज आर द बेसिक ब्लैक एंड वाइट बुक्स. आप पढ़ते थे, बोर होते रहते थे, लेकिन वही पढ़नी पड़ती थी. नाउ देयर आर कलर्ड इमेजेस. अगर वो अमीबा बता रहे हैं तो अमीबा की फोटोग्राफ है वहाँ पे. देन स्कूल्स हैव गॉन इनटू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, एवीज और इन सब के थ्रू भी पढ़ाया जा रहा है. तो चाइल्ड गेट्स टू सी. Absolutely correct. If we are talking of maybe a volcano, so he will get to see the volcano and lava eruption and everything. So it settles into the mind. मेहनत हो रही है, ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा, बट जनरेशनल चेंज आ रहे हैं. एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट. दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि नया क्या हो रहा है. इनोवेटिव अप्रोच तो आपको रखना होगा. इन द सेम स्कूल, in the same standard, students would be making beeline for one teacher, and they would be, although it will be harsh, they might be hating another teacher. हो सकता है, बिल्कुल हो Same सकता है. same Yes. environment. Why it is happening? Because person A is putting more efforts into it, and those efforts translate into the class. जब कल न्यूज़ पढ़ा था मैंने, आई वॉज रियली स्केर्ड बिकॉज आई हैव अ डॉटर एंड अ सन बोथ एंड आई वॉज स्केर्ड फॉर बोथ ऑफ देम. Right. Valid point. From a mother's point of view, it is very valid. Yeah, I have both of them, and you know, bullying is one thing which I hate like anything. Which as a society, all of us should Yes, not encourage, it and all of us is should look down upon. something. Bullying is something कि आप अपने बच्चे को ना बहुत ही मतलब वो एक बड़ा होकर एक ऐसा एडल्ट बनने जा रहा है कि वो लाइफ टाइम बुली करेगा सबकी. Right. He will not spare even his family members. No, it will come back to. Yes, As a it will. parent, it is. हाँ, it is going to come back to you. So you need to put a full stop over there. Again, I wanted to ask, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? Why do they lie? Any psychological like reason behind it? Two things. One, they know that if I tell the truth, maybe the outcome will not be very good for me. ये तो सर हमारे साथ भी हुआ है. हाँ, हमारे साथ हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी करना है आगे. They are the smarter ones, and they will be having better excuses, better ways to sugarcoat their lie. We won't be able to find it out at times. There would be so many reasons, maybe emotional attachment, so many things can happen. कि ठीक है, ignore करो. हाँ हाँ. And it will get into his or her habit. So the point is, one thing, they are not really sure how my mother or father will respond. And they start judging. मम्मी पापा में से कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट होगा. चलो इसको बताना भी है तो पहले इधर टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स. कौन They are really smart. right. And that's how the world progresses. Every next generation will have to outsmart the earlier one. Yes. एक और क्या होता है कि, and this is a very frequent thing, mother will hide things from father. ये तो obvious है. And the child now knows, okay, ये मेरी बातें वहाँ पे रोक ली जाती हैं. She is not transmitting each and everything like that only. Maybe out of love or whatever it is. Now he is getting to this zone. मम्मी ऐसा हो गया, and that's it. And then he will understand कि अच्छा मम्मी उधर नहीं बता रही, जरूरी थोड़ी कि मैं भी सारी चीज़ें सही इन्हें बता रहा हूँगा. Oh. And if it's not a working mother, she will be having no clue what is going outside. She'll be having no clue. And that's really sad. And that's absolutely sad. That's terribly sad. And this should not, and maybe I believe that a larger amount of arguments that happen between husband and wife is because of the kids. Yes, ये तो होता है. ये हमारे बीच में भी होता है. के साथ भी होगा. ये होता है. आप अपने रीज़न पे कभी नहीं लड़ रहे होते हैं कि नहीं आज मैं और हस्बैंड और वाइफ लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता. इट इज़ 90% it is because of the kid. तुमने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, and kid is listening to all this. And then they are making the perception, okay, ये सीन चल रहा है, मम्मी बचा रही है, पापा डांट रहे हैं, या पापा बचा रहे हैं, मम्मी डांट रही है. And then he has his own perception, and you cannot interfere in that because he has not shared it with you. He has formed that perception, and certainly they keep on doing this. अगर उसने एक बार देख लिया कि मदर ने फादर को नहीं बताया, now he knows the boundary line. अभी वो वही करेगा जो मम्मी ओके कर देंगी. और एंड देन इट गोज़ टू द नेक्स्ट स्टेप वेयर
he is getting more than allocated pocket money from mother, maybe for Got it. birthday celebration and all those things. Mm-hmm. Whatever any nuisance which is happening in his school Mm-hmm. can be traced back to the money that is being provided to the child. Got it. ये हो रहा होगा, and then mother, or for that matter even father, will not get to know, they will not be having idea what exactly is going on over there. School में क्या हो रहा है? It is not about one school, it is about all the schools. all the schools. Kids are exposed, they are exposed, probably they are exposed more than what we have been exposed to till this point Age. of our life, till this age, because they have this social media and they know what to do, what not to do, and they are very well aware of. If a child is, let's say, he or she is sitting maybe 5 feet from here Mm-hmm. and watching something, Mm-hmm. let's say on Instagram, if mother is walking towards her, she is very smart to switch the screens, and for the life of mother she will never get to know क्या हुआ, क्या देखा जा रहा था, क्या हो रहा था, आपको कभी नहीं पता. आपको ऐसा भी हो सकता है, and there are situations like this. All the examples that I am sharing over here are the live examples. Okay. मदर का मोबाइल फ़ोन है, उसमें इंस्टाग्राम है, बट मदर को पता ही नहीं है. चाइल्ड हैज़ अ सेफ्टी लॉक, मदर को आइडिया ही नहीं है. हमने तो उसे कोई मोबाइल नहीं दिया, हमारे मोबाइल पे तो पढ़ाई कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. यू डोंट नो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. वो आउट स्मार्ट तभी कर पाते हैं आपको जब आप अपने, यू आर नॉट एबल टू कीप द पेस विद देम. आप कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप कम से कम वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं कि बच्चा आपको बातें बताए अपने. और हर बात पे बहुत ही इरिटेटिंग रिएक्शन तो नहीं दिया जा सकता. आप अगर हर बात पे उसको डांटेंगे तो फिर एक दिन आपको मौका भी नहीं मिलेगा, वो आपसे बात करना ही बंद कर देगा. और वो वही, एज आई सेड, कि 16 years of age, 20 years of age, and child is coming to you, sharing your problem, sharing her or his problem with you, with parents, you are a successful parent. इसके अलावा और कोई यार्ड स्टिक ही नहीं है. वो आके आपसे बात कर रहा है, यू आर रियली गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब. और अदरवाइज तो नहीं, I'll take this as a personal note. मैं and I wanted to ask you, why do children misbehave most with their parents? जिनका एक comfort zone होता है, सबसे ज़्यादा misbehave वो अपने parents के साथ ही करते हैं. बाहर उतना नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा misbehave वो अपने parents के साथ ही करते हैं. ऐसा क्यों होता है? Why do they do like this? दे हैव डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ रियलिटी. उन्हें लगता है कि बाहर तो जो हो रहा है ठीक है, बाहर आई एम गुड, सब मेरी तारीफ. They have put a mask बाहर के लिए. राइट. दे आर एबल टू मैनिपुलेट. बट उसने सीखा है, उसने देखा है, ही और शी हैज टेस्टेड द लिमिट्स. इतना करना ओके है, इतना करना नहीं ओके है. इट्स अ वेरी टफ जॉब. पेरेंटिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब. उसको क्या अलाउ करना और क्या नहीं करना है, यू विल हैव टू सेट द बाउंड्री लाइन्स. And once you are clear on the boundary lines and once the child knows, then it is absolutely okay. Okay. ऐसा नहीं है, मैं ऐसे भी बच्चे देखता हूँ जो नहीं मिसबिहेव करते हैं पेरेंट्स के सामने, बट हाँ, द परसेंटेज इज़ वेरी लो. Yes. और वो जो मिसबिहेव करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो बहुत जाता है. ज़्यादा है. लेकिन क्योंकि बाउंड्री सेट नहीं की हुई थी. बाउंड्री सेट होगी जब वो छोटा था. एंड आई थिंक बाउंड्रीज और सेट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब बच्चा 7 years तक का होता है. उससे पहले अगर आपने बाउंड्री सेट कर दी, झूठ मत बोलो, ठीक है, मेरे साथ इतना तक तो चलेगा, लेकिन ये सब नहीं चलेगा. राइट. बाउंड्री तभी सेट कर दें, बिकॉज आफ्टर आई थिंक 10 साल 11 साल के बाद तो वो सुनेंगे ही नहीं. दे विल नॉट लिसन. वाई दे विल नॉट लिसन? बिकॉज दे हैव ऑल्सो नॉट सीन कि पहले भी मैं कभी सुना है. डन रोल ऑफ अ गुड कॉप in the age bracket of 6 to 10. Coaching job would be easier. If you have done coaching job better, the counselor job would be easier. Otherwise and again, every day it's parenting is a challenge and you have to accept it very gracefully. आपको लिमिट्स भी बतानी है, आपको उसे ये भी इम्प्रेशन नहीं देना है कि यू डोंट केयर फॉर हिज और हर फीलिंग्स. वो तो फिर बहुत ही अलग हो जा रहा होता है. इट्स अ टफ जॉब, नो डाउट, बट इट्स वर्थ. Yes, it's worth. Yes. Is stubbornness really a negative trait or a sign of emotional intelligence in children? The mix of both. Acha, Depends upon for what he is stubborn about, for what she is stubborn about. Acha. I know a child who has written, she is in class 12th, yeah, she will write the board next year. On her study table she has written IIT Mumbai CS. Wow. This she has written the day she passed class 10th.
Mm-hmm. That's stubbornness. That's very, very positive attitude. It should be there. You have a goal. Whether you will reach there or not, that's something different. But you know, this is the path. This is where I have to go. This is purpose of my life. This is what I want to do. Hmm. दूसरी तरफ stubbornness ये हुई नहीं मैं यही करूँगा and then I don't have a reality check. Maybe nowadays it happens. I would like to be a social media influencer. आजकल का तो सर ये एकदम ट्रेंड बना हुआ है, लोग इतना इजी मनी है ना, द कंटेंट इज वास्ट, जो मर्जी करे. आई हैव सीन फ्यू कंटेंट लाइक ब्लोन माय माइंड अवे. They're just standing doing nothing. They are making themselves a fool in front of camera, and the reach is in 5 million, 6 million. I mean, so easy money. Clickbaits. Yes. It is easy money. It is easy money. So they get distorted version of reality. पैसा तो आसान है, बस ये करने नहीं दे रहा मुझे मम्मी पापा. मैं तो कर लूँ ये सारा. जब वो ब्लॉगर कर सकता तो मैं तो मैं क्यों नहीं कर मैं क्यों नहीं सकता? कर सकता. वो तो सुबह उठ के कुछ भी बना देता है and there are so many views and then they go and check on this chat GPT if these many views are there how much money I will make. Could they multiply it by 365? ये तो बहुत ही पैसा है. इतना तो पेरेंट्स ने कभी बनाया ही नहीं. सर मैं ना एक और, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनी ऑफ द शोज, बट देयर इज अ वेरी फेमस शो कॉल्ड IUPU. Okay. IUPU शो, एंड उनके पेरेंट्स ही शूट करते हैं, और बहुत मतलब उनके तो क्रोर्स में जाते हैं व्यू, क्रोर्स में. बट व्हेन माय हस्बैंड सेज कि मत देखो ये, बिकॉज जो IUPU, आई डोंट नो विच इज़ अ गर्ल एंड विच इज़ अ बॉय बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट. आद्या बहुत देखती है, तो लाइक शी इज़ इनटू कॉलेज राइट नाउ. शी इज़ हैविंग दोज नेल पॉलिश, एक छोटा सा पेट है, उसका कंटेंट, दे आर गोइंग फॉर वेकेशन. सो व्हाट आई फील इज़, 2 व्यूज़ थे मेरे दिमाग में उस शो को देखकर. इन बच्चों के पास कोई कंटेंट है ही नहीं देखने के लिए, तो ये क्या करेंगे आखिर एंटरटेनमेंट के लिए? व्हाट आर दे गोइंग टू डू? हमारे पास तो था, वी यूज्ड टू सिट विद लाइक होल जॉइंट फैमिली. आज का सिनेरियो जॉइंट फैमिली वापस से नहीं आ सकता, नहीं हो सकता. वी कैन नॉट डू इट. एंड इतना एक्सपोजर है, देयर इज नो चाइल्ड फ्रेंडली शो. There is no trend. And that's No. not good. येस, दैट इज अ ह्यूज गैप. आप कोई एपिसोड्स वैसे बना ही नहीं रहे हो. KBC बच्चा कितना देख लेगा? स्कूल में भी जाकर वो वही कर रहा है. डांस में भी, यू नो, देर आर सर्टेन डांस शोज विच यू कैन नॉट टेल योर किड्स टू वॉच. I They have, agree on that. you know, such Kind- vulgar steps. Right, right. You know, you cannot let them watch for like good hours. And again, वो आए वापस, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. तो डेफिनेटली यूट्यूब पे दे आर वॉचिंग क्राफ्ट, दे आर वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स. और वहाँ पर अगर आप बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो एक बाउंड्री सेट करना चाहते, हाउ टू फिल दिस गैप? आई मीन, एनी टेक ऑन दिस? This is certainly difficult. Yes, it's very difficult. But unless until child sees his father or mother reading a book or playing a sport, he's not going to channelize the energy into these two things. Mm-hmm. Constructive things. If we I completely agree, because most of the parents these days are busy on Netflix right. and your Prime Amazon. If you are actually doing Netflix and chill, so what is about to happen? बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है. उसको लग रहा है यही तो चीज़ है which parents are doing, so I must do it. And then by God's grace, they have iPad. They have all the sort of gadgets that are possible. So they are too much exposed for their life, for the kind of young age that they are into. And then they don't have this, for obvious reason, they don't have this wisdom what to watch and what not to watch. And parents cannot control it. As ये such. बात तो सही है. They cannot, just can't. Can. So this moves to the next step, जहाँ पे आप उनके साथ क्रिएटिव गेम्स खेलें. आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, बहुत मेहनत का काम है. आपको जाके फैमिलीज़ में ऐसे ढूंढने पड़ेंगे कौन से गेम्स हैं जहाँ मैं भी बैठूंगा. एंड देन इट कम्स विद अ टाइम कमिटमेंट, क्योंकि बच्चा एक बार बैठा तो कहेगा आप खेलते हैं. इट विल टेक योर 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. So Obviously. that's much you have to give to them. और मे बी यू शुड बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, जहाँ पर बैठा पापा क्या नया हुआ आज बताइएगा. तो दोज आर थिंग्स, अगेन इट्स अ चैलेंज. बट अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जैसा हो रहा वैसा होता रहे, Mm-hmm. तो कुछ नहीं हो सकता. तो कुछ नहीं हो योर ओन सकता. लाइफ जो आपको कंट्रोल तो करनी पड़ेगी. एंड वट एवर अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म यू कैन डू, इफ़ यू आर वॉचिंग योर सेल्फ सम लाइव डिबेट ओवर देयर दैट पीपल आर
fighting or arguing like anything, the child is not going to learn much from this. True. Oh, this is the right thing. How do parents' words shape a child's brain and self-image long term? I guess their contribution is close to 90%. 90%. Oh Close to my 90% God. It would be parents for parents. अगर वो बोलते रहे Of early years, yes, maybe till 7 years, 5 years, 6 years, 7 years, it is 90%. Then maybe gradually the school's role and the friend circle's role will come up as they move up the age. But it is very important. And the self-image, particularly self-image, parents will have to do a lot of hard work. And this is where maybe you need to watch shows, maybe you need to read books, and maybe you need to read your own child, most importantly. And it's not a rocket science. ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़े होंगे तभी आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कर सकेंगे. आप अगर बच्चे को सुन भी ले रहे हैं ना, एक्टिव लिसनर भी हैं उसके, तो वो बच्चा फिर आपसे कनेक्ट रहेगा. आप उसको सुन के कुछ क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हैं. and I ऐसा can होगा तो क्या? relate this. जो चीज़ें आपने बोली हैं, I remember my नानी and my दादी. They both are like, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब my नानी, yes obviously she is a double MA, but my दादी, she is a very simple lady, but I'm very fond of her because she used to listen to me. मुझे अगर बैगन नहीं पसंद है, she used to make stories regarding it, और वो कब खाना खिला देती थी Exactly. मुझे पता भी नहीं है. तो ये उन्होंने भी कहीं देखा होगा, सीखा है. हमें भी वही देखना होगा, सीखना होगा, बिकॉज इट इज़ फॉर आवर चाइल्ड. इससे ज़्यादा और क्या ही इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं? सही बात. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या इन्वेस्टमेंट? योर एंटायर लाइफ इज़ काइंड ऑफ गेटिंग इनटू दिस चाइल्ड ओनली. और वहाँ पे हम क्या है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हमसे, नहीं, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड देयर इज़ अ वेरी शॉर्ट विंडो, हार्डली 11-12 ईयर्स. उसके बाद आप चाहें बच्चे से कनेक्ट कर लेंगे तो द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन ऑलरेडी. अगर तब तक आपका कनेक्ट नहीं बना है तो, क्योंकि नाउ ही हैज़ अ फ्रेंड सर्कल, वो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, आपसे कम हो आपसे जाए, कम करेगा, और वो जान गया है कि आपको क्या बताना और क्या नहीं बताना. क्या नहीं बता. तो उसके पहले अगर आप ये उसकी सेल्फ इमेज बड़ी स्ट्रांग रखते हैं कि अगर कोई बुली कर रहा है तो यू हैव टू स्टैंड अप वेरी स्ट्रांगली फॉर इट. और आपको उसे ये एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे. हो सकता है रियल लाइफ में ऐसा एग्जांपल ना हो जब आपके साथ नहीं हुआ और बच्चे ने नहीं देखा है, बट आपको समझाना पड़ेगा. हो सकता है वो स्कूल से रोता हुआ है तो आपको उसे बताना पड़ेगा, चलो ठीक है मैं इसको हैंडल करूँगा. और आपको कुछ एग्जांपल्स देने होंगे. यू विल हैव टू मे बी साउंड इट आउट टू द टीचर, टू द coordinator, to the school administration, and then the child will know कि okay, this is how it is handled. Next time if somebody is bullying me, I'll speak to my teacher, I'll tell this, there is a certain hierarchy in the school, how I will escalate it. वो उस बच्चे को पता होना चाहिए. उस बच्चे की सेल्फ इमेज तभी स्ट्रॉन्ग होगी when he knows all these things. Why do negative comments affect children more deeply than praise? Yeah, again, it's their formative age, and negative comments, for that matter, they hamper anybody's ego. Yeah. When somebody who is as accomplished as maybe Kapil Sharma, he did something on Twitter, and then some Yes. comments were there, trolling was there, so it is there with everyone. कितने अच्छे से पेरेंट बात कर पा रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करें कि स्कूल में भी सब बच्चे अच्छे से ही बात करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं. स्कूल इज़ नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड. Yes, it तो is a वो- miniature of इट society. इज़ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी. तो वो वैसा रहेगा और आपको बच्चे को उसको समझाना पड़ेगा ढंग से कि बेटा ऐसा होगा, हर दिन वैसा नहीं जाएगा जैसा आप चाहते हैं, और हर जगह हम नहीं होंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. आपको यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ. Yourself. You have to sound it out to the right person who is there, Mm-hmm. and maybe do not get involved into physical fights, especially with the boys, but at least know the right channels how to sound How to go with everything. and how to communicate effectively. I think with like talking to you gave me an insight कि communication is the key of everything. है ना, कम्युनिकेशन आपको, और कम्युनिकेशन सॉलिड होने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. Time investment. देयर इज नो शॉर्टकट. बहुत ही अच्छा लिसनर होना पड़ेगा हाँ, अपने बच्चों के लिए. बिल्कुल ना. लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स के शेप जो वर्ड्स होते हैं वो शेप कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं सर, मतलब ये होता है. और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमें बता भी नहीं रहे होते हैं, चाहे वो कितना भी है, दे कीप इट टू देमसेल्फ. Right.
और हमें नहीं बताना है। आई थिंक ये क्वालिटी मैंने प्री टीन्स में देखा है कि वो जनरली एक उनका जब एनालिटिकल दिमाग होता है ना, कि अगर मम्मा बोल रही हैं खाना खा लो, दिल से मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, अभी नहीं करना है, बाद में करना है। एवरी सिंगल थिंग प्री टीन्स में होता है, मैं अभी नहीं करूंगा या अभी नहीं करूंगी। राइट है। दे डू इट बिकॉज आई थिंक एक तो हार्मोनल चेंजेस भी है, एक एनालिटिकल जो ब्रेन होता है उनका, अभी तक तो वो सिर्फ सुनते हुए बड़े हो रहे हैं, समझते हुए बड़े हो रहे हैं। आई थिंक एक मदर के लिए वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसको समझ में ही, मदर को भी नहीं समझ में आता है कि ये बच्चा मेरे से कब ना बोलना सीख गया, हर चीज़ के लिए ही ना बोल रहा है। एग्जैक्टली। हाउ टू हैंडल दैट थिंग फॉर अ मदर ऑल्सो एंड फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि उसको आई डू थिंक कि बच्चा आपको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ना नहीं बोल रहा है, वो बस देखने के लिए बोल रहा है कि इसका आउटकम क्या होगा। मैं अब इन द बाउंड्री हाँ। कि मैं क्या कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, समथिंग हैज हैपेंड इन द स्कूल एंड दे डोंट वांट टू शेयर दिस विद यू, एंड द फर्स्ट थिंग दैट दे स्टार्ट hating about or they start telling to you is no, I will not do this, I will not do this, खाना नहीं खाएंगे। स्मार्ट मदर है, शी विल गेट टू नो, आज उसके अपने मनपसंद का खाना बनाया तो उसने मना कर दिया, अब आपको पता है कुछ गड़बड़ हो गई। एंड आई हैव सीन मदर्स डूइंग दिस, दे नो इट कि अच्छा आज बच्चा कुछ अपसेट है। अब आपको कितनी पैम्परिंग करनी है और कितना लिसनिंग स्किल्स को अपने काम में लाना है, दिस इज इनबिल्ट इन मदर्स। फादर्स भले ही एक बार ना हो, मदर्स नो दिस। कोई मदर ऐसी नहीं हो सकती वो कहते कि नहीं बच्चा परेशान था और मुझे आइडिया नहीं लगा। नहीं, नेवर हैपेंस। गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड एनी मदर लाइक दैट। उन्हें पता होता है। सही बात है। टू द एक्सटेंट कि इस तरीके की भी टेलीपैथी होती है कि दिन में बच्चे के साथ स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई एंड मदर इज़ फीलिंग डिस्टर्ब, तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, मदर्स नो अबाउट इट। बच्चा मना करेगा, पर वही वाली बात है कि हमें रूल्स पहले से सेट करना है। इफ़ यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, please fold your blanket. This is the task that you have to do. Now that you are 11 years of age, tomorrow you are going to school, shoes should be polished by you only. Nobody else is going to do that. अगर मदर ने किए हैं, कोई और कर रहा है, तो बाउंड्रीज ऑलरेडी सेट, वेदर यू नो इट और नॉट। उसको अपने रूल्स और चीज़ें जब पता होंगी तो वो कहेगा हाँ ठीक है, ये मुझे पता और ये मैं ऐसे करूँगा। सेम सेट ऑफ पीपल रेगुलर रूटीन रोड पे चल रहे होते हैं एंड दे स्पिट हेयर एंड देयर, but once they go to shopping mall they don't do this because boundary set है पहले से ही। boundaries are set over there। वो पहले से पता है कि यहाँ करने पे ज़्यादा गड़बड़ है, ये नो गो जोन है और ये ओके जोन है, ये ग्रीन जोन है, ये रेड जोन है। मतलब साइकोलॉजी इज वर्किंग लाइक everywhere and it is working 24/7 whether you know it or not। और बच्चा ऐसा करेगा ही, वो उसकी विजडम भी बढ़ रही है, उसके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं और उसका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ रहा है। One important thing that as a parent you can do is to know the friends of your child. It is very very important. very It is important। extremely important। कहाँ हैं, क्या करते हैं, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, आपके बेटे की क्या है। डोंट पुश हिम कि बताओ मुझे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। धीमे धीमे आपको बताएगा, बट आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इट इज and I think once in a while, I mean in a month 3 to 4 times visit to a school by the parent। आप चाहे लेने चले जाओ, चाहे टीचर से आप कांटेक्ट में रहो, you need to have that kind of a contact। nowadays with all these communications apps हैं schools के, जहाँ पे आप उनसे communicate कर सकते हैं। there are numbers, WhatsApp नंबर वगैरह हैं, आप उनसे communicate तो कर ही सकते हैं one to one। it will not be possible for teacher to give feedback to each and every parent on PTM। during the PTM it actually never happens कि पूरा फीडबैक किसी एक बच्चे का बता रहा हूँ। वो not 14 possible, yeah, को होते हैं जो not अच्छे possible, yeah। उनके लिए हो रहा है, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए नहीं, being if I am also teacher, मान लीजिए मैं भी अगर एक टीचर हूँ तो 50 किड्स हैं अगर मेरी क्लास में, I cannot speak that much। 1 मिनट भी अगर मैं लगाऊँ तो 1 घंटा This is a very proactive approach that you are suggesting कि you should go to school maybe twice in a month, yeah। just to pick the child। and you get to know क्या है कैसा है। थोड़ा लेट हो जाएंगे but I think that's fine। वर्किंग मॉम्स के साथ ऐसा नहीं होगा, उन्हें कम्युनिकेशन चैनल कुछ अपना डेवलप करना होगा, बिकॉज इन द मॉम कैन नॉट लीव द ऑफिस ड्यूरिंग द डे। उन्हें अपना चैनल डेवलप करना होगा जब टीचर से बात कर लें, एंड टीचर उसको भी तो कम्युनिकेशन ही करना है। शी हैज़ वन जॉब टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड,
यू हैव वन जॉब टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, तो दोनों लोगों का गोल सेम है, तो दोनों लोग कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं. कम्युनिकेशन लूप क्लोज रहे तो वो ज़्यादा जरूरी है. Got it. And as like this will be the last question. Okay. Yeah. I would like to ask, जैसे जैसे AI आ रहा है, technology is getting inside ahead. मैंने देखा AI as a tutor. I've seen AI teachers भी यूज़ कर रहे हैं, पेपर्स बनाने के लिए, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं असाइनमेंट करने के लिए. Are they really not using their brain? I mean, बच्चे का तो मैं समझ सकती हूँ कि उसके लिए एक नया शौक है, वो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहा है. या वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है कि मैं थोड़ा सा लेजी हो जाऊँ, चलो कोई नहीं चलता, वो हो जाता है. बट डू यू थिंक कि दिस विल हैम्पर और दिस विल इनहेंस? इज वैल्यू न्यूट्रल. जैसे सोशल मीडिया वैल्यू न्यूट्रल है, वैसे ये भी वैल्यू न्यूट्रल रहेगा. हो सकता है अच्छा, बस आई टेल यू, हो सकता है बच्चा अच्छे के लिए कुछ कर रहा हो वहाँ पे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं AI विल नॉट कम. AI हैज it will has your arrived. face, yes. It is there in better ways that you can know it is there. The child is already using it. Mhm. अभी वैल्यू न्यूट्रल इसलिए है, अगर मैं कुछ अच्छे के लिए कर रहा हूँ, टू लर्न समथिंग न्यू, then it is good. It will give me different perspectives and all those things. But if I am again as on social media, whether I am watching a TEDx or whether I am watching vlog of someone, social media has got no role. वो तो आपको, in fact I would say AI is better. It grows with quality of my questions, the kind of questions that I'm throwing The upon it, prompts which the you prompts which I am using, it is responding to those prompts, and then it will also suggest me to improve on it. How do I improve? How do I do this? But then priority has to be there. Priority क्या रहेगी कि मुझे इससे क्या करना है. जहाँ पे अगेन सेम थिंग गोस कि पेरेंट्स का भी एक रोल होगा कि मैंने देखो ये किया, इज इट ओके. आपको उससे भी पूछ लो थोड़ा सा, वो बताएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है. तो विल गेट टू नो, अच्छा ये तुम मुझसे ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं. मुझसे ज़्यादा. एंड certainly if the child is in class 5th or 6th, they know it and they are smarter on it. और मुझे लगता है उसका अच्छा यूज़ है अगर वो कर सकते हैं तो. One of the example is niece of mine. She told me she wrote her board last year. She told me that she asked the AI to give to analyze last 5-year paper of a particular subject and give me a paper. Wow. I did that, and chacha, That's a very smart use, yes. 75% was matching with the board. Wow. This is too much. I don't think teacher would have created the paper like that. Obviously, There's it's a certain lot trend of... which is being followed. So the trend, AI has analyzed that trend and he has thrown the same kind of question paper. So the pattern was same. So the child could score well. But the child had to study. पढ़ाई उसमें की, पढ़ाई तो करनी पड़े. उसने अपनी पढ़ाई की थी, उसने बैलेंस शीट कैसे होंगे, उसने सारा कुछ किया था. इट वाज अबाउट अकाउंट्स पेपर, उसने सब कुछ वैसा ही किया था. बट उसने मेहनत की थी. हाँ, उसने अब उसको ना एक फाइनर एज दे दी है कि मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द प्रीवियस 10-year पेपर्स आई एम गोइंग टू डू दिस, एंड दिस इज वेयर दे आर स्मार्ट. वो करेंगे उसका. AI इज़ वैल्यू न्यूट्रल. कैसा यूज़ कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. Thank you so much for taking out time and like discussing real world problems with us. He has taken out time for us to talk about and to give insight of this child psychology, and I think it will help every one of us. So thank you, and wait for another episode of Deepti and Shravan Talks.